کیا شاذبین بتا پائے گی اپنی خاموشی اور پریشانی کی اصل وجہ؟ اور کیا منظر صاحب اور ان کا بیٹا وقاص صالحہ بیگم کو اپنے آئندہ ارادوں سے باز رکھ سکیں گے؟ کس کی ہوگی کوشش کامیاب، منظر صاحب اور وقاص یا پھر صالحہ بیگم؟ جاننے کے لیے دیکھیے السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ شب، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شبیر، اور آج آپ اس ناول کی 36ویں قسط سنیں گے۔ کیا بات ہے بیٹا شاذبین، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کو الگ تھلگ اور چپ چپ سی دکھائی دے رہی ہو۔ کیا بات ہے بیٹا؟ لان کی جانب بڑھتے رومانہ ثاقب حسین نے دیکھا شاذبین لاؤنج میں اکیلی بیٹھی ہے، کسی سوچ میں گم اور بالکل خاموش۔ تب رومانہ ثاقب حسین اس کی طرف ہی پلٹ آئیں۔ بالکل، میں بھی محسوس کر رہی ہوں شاذبین، تم اور زاویہ دونوں الگ تھلگ رہ رہی ہو، دونوں کی بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کم ہے۔ اور بھابھی جان، میں تو خود اس سے پوچھ چکی ہوں مگر مجھے ٹال گئی۔ ڈاک کے ڈبے کے تمام لفافے اور خطوط صباحت نکال کر لے آئی تھی رومانہ ثاقب حسین کو دینے، لیکن رومانہ ثاقب حسین کو یہی لاؤنج میں دیکھ کر وہ یہیں آ گئی، اور یہی نہیں، اپنی بھابھی جان کی کہی بات کی برملا تائید بھی کرنے لگی۔ نہیں امی، شاذبین جلدی سے بات کا موضوع بدلنے لگی۔ صحیح ہی تو کہہ رہی ہیں بھابھی جان، اور ماں کو تم پھر ٹال سکتی ہو مگر اپنی ممانی جان کی بات کا جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا بیٹا۔ صباحت اس کے سٹ پٹانے کو صاف ٹال گئی۔ یہ لیجیے بھابھی جان، کہتے ساتھ تمام لفافے اور خطوط رومانہ ثاقب حسین کی جانب بڑھائے، جنہیں انہوں نے لے تو لیا مگر وہ شاذبین کی جانب ہی متوجہ تھی۔ بیٹا کوئی بات ہے تو تم مجھے کہو۔ وہ اسی طرح فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممانی جان، کوئی بات نہیں ہے، شاذبین سب گڑبڑائی۔ اکیلے امی ہوتی تو جیسے تیسے انہیں ٹالا جا سکتا تھا، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیتی اور تب صباحت اپنی بات کو بھی بھول چکی ہوتی۔ ہاں مگر رومانہ ثاقب حسین کو ٹالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو ان کے بڑے ہونے کا احترام، ادب اور لحاظ، اور دوسرے وہ ویسے ہی کس قدر اس کے لیے حساس اور فکر مند رہتی تھی، شاذبین بخوبی جانتی تھی۔ ایسے ہی تو ایک پرسکون زندگی کا اتنا بڑا سارا عرصہ اس گھر میں اتنی خیر و عافیت کے ساتھ نہیں گزارا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب ہوش اور شعور کی آگہی اور واقفیت سے قطعی نابلد تھی، مگر اب وہ ایک جیتی جاگتی بڑی لڑکی تھی۔ اپنی ذات اور شخصیت کی جہاں پہچان ہوئی تھی، وہیں زندگی میں ہونے والے اتار چڑھاؤ، حالات اور واقعات اور لوگوں کے رویوں کی بھی خوب آشنائی نصیب ہوئی تھی۔ اپنے اور بیگانے کا فرق وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی، اور اس نے رومانہ ثاقب حسین کو خود اپنے ساتھ کس قدر مہربان اور شفیق دیکھا تھا۔ رومانہ ثاقب حسین جس طرح اپنے دونوں بچوں حازم اور زاویہ کے لیے حساس اور فکر مند رہتی تھی، اسی طرح شاذبین کے لیے بھی فکر مند ہوتی، اس کی پرواہ کرتی، اس کا خیال رکھتی، اور اس کی ذرا سی خوشی میں خوش اور چھوٹی سی پریشانی پر بھی فکر مند ہو جاتی۔ رشتہ تو ماموں اور ممانی کا ملا تھا، مگر شاذبین نے دیکھا تھا رومانہ ثاقب حسین اسے ہمیشہ زاویہ کی طرح اپنی بیٹی ہی سمجھتی تھی، اور بلکہ کتنی ہی باتوں میں وہ شاذبین کو زاویہ پر فوقیت دیتی، اور ابھی بھی لان کی جانب بڑھتے رک گئی تھی، اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر یہیں آ گئی تھی، اور صباحت کے لا کر دیے ہوئے تمام خطوط اور لفافے بھی انہوں نے ایک جانب رکھ دیے تھے، اور پوری طرح وہ شاذبین کی جانب ہی متوجہ تھی۔ بیٹا اگر کوئی بات نہیں ہے، مگر صباحت نے بھی تو محسوس کیا ہے، اور بلکہ جب ہم اس رات کھانے پر گئے تھے میں نے دیکھا تھا تم تب بھی بہت چپ تھی۔ ہاں تم زاویہ کی نسبت کم کو ضرور ہو، سمجھدار بھی ہو، مگر اتنی خاموش تو نہیں رہتی ہو، اور تم مجھے خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی دکھائی دے رہی ہو۔ رومانہ ثاقب حسین اب اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل بھابھی جان بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور پہلے تو میں نے یہی خیال کیا کہ کبھی کبھار انسان کا دل ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ کہیں خاموش جا کر بیٹھ جائے، سب سے الگ تھلگ، مگر اب تو کافی دن سے میں خود دیکھ رہی ہوں تم بہت خاموش ہو۔ بھابھی جان بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، صباحت ہمیشہ کی طرح رومانہ ثاقب حسین کی کہی باتوں کی تائید کر رہی تھیں۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاذبین جلدی سے ٹالنے والے انداز میں بولی۔ لیکن بیٹا بھابھی جان بھی تو یہی بات کہہ رہی ہیں، اور یہی بات
मैंने कुछ दिन पहले खुद तुमसे की थी और तुमने तब भी मुझे डाल दिया था। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम और जाविया इतनी अलग थलग क्यों हो? सबाहत ने नुक्ता उठाया। हाँ बिल्कुल। रुमाना साकिब हुसैन अपनी नंद की बात को सुनते बगौर उसे देख रही थी। बेटा कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, क्या जाविया ने तुम्हें कुछ कहा है? अपनी दानिश में वो अब वजह ढूंढ रही थी। अगर जाविया से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो मैं अभी उसकी जाकर खबर लेती हूँ। मैं तो खुद देख रही हूँ मेरी बेटी शाज़मीन आजकल कुछ चुप चुप सी रहने लगी है। वो उसी तरह खुलूस और अपनायत से उसकी तरफ देख रही थी, उससे पूछ रही थी। नहीं मोमानी जान, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस अम्मी की बात को मानते हुए मैं किचन में कुछ वक्त गुजारने लगी हूँ। कुकिंग करना मुझे अच्छा लग रहा है, तो शायद इसी वजह से आपको और अम्मी को ऐसा लग रहा है। शाज़मीन संभल कर बैठी। और ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छी बात है, तुम माँ की बात को सुनती हो और अहमियत देती हो। मैं तो सचमुच परेशान ही हो गई थी कि शायद जाविया के साथ कहते कहते रुकी। मोमानी जान, ये तो मुमकिन ही नहीं है। रुमाना साकिब हुसैन की अधूरी छोड़ी बात को वो बखूबी समझ गई थी और अब बड़े सलीके से उनकी बात को टाल भी गई थी। किचन में ज़्यादा वक्त दे रही हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हाँ हो सकता है, और जाविया वैसे भी ज़्यादातर वक्त अपने बेडरूम में होती है। रुमाना साकिब हुसैन ने शायद शाज़मीन की बात को मान लिया था। बेटा मैं तो खुद भी चाहती हूँ घर के कामों और कुकिंग वगैरह में जाविया भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी ले। आजकल बच्चियाँ खाने की नई नई डिशेस बना कर रख देती हैं, कुकिंग क्लासेस लेती हैं और तरह तरह की रेसिपीज ट्राई करती हैं। और पाकिस्तानी, चाइनीज़ खाने, इटालियन, सिंगापुरी राइस, क्या कुछ नहीं बनाकर सामने सजा देती हैं। वो डिशेस भी जो हम इस रेस्टोरेंट जाकर एंजॉय करते हैं अब घर की डाइनिंग टेबल पर सजी दिखाई देती हैं। बर्थडे केक तक बच्चियां घरों में सीखकर बनाने लगी हैं। मगर जाविया की तबीयत और मिजाज ही और है। उसे तो किचन जाने से ही चिढ़ है। अपनी मर्जी से सोना, जागना, शॉपिंग, फैशन, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी और मज़ेदार खानों को एंजॉय करना। सारा सारा दिन आईने में खड़ी खुद को देखती रहती है। बच्चियाँ माँ बाप के घरों में हो तो ये सब चल भी जाता है, मगर शौहर और ससुराल में ये सब ज़्यादा वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाता और फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मैं तो चाहती हूँ जाविया कुकिंग की तरफ भी तवज्जो दे, मगर वो बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं लेती। कहते साथ उनके लहजे में कदरे उदासी और मलाल भी नुमाया था। अब देखो सबाहत, तुमने एक मरतबा अपनी बेटी को कहा और शाज़मीन किचन के कामों में, कुकिंग में दिलचस्पी ले रही है, और एक हमारी जाविया 1000 मरतबा की कही हुई बात भी उसके जहन से निकल जाती है। रुमाना साकिब हुसैन का लहजा कदरे शिकायती था। नहीं भाभी जान, ऐसी बात नहीं है। जाविया बहुत समझदार है, हर बात को समझती है, मानती भी है। हाँ मगर तबीयत में कुछ लाओबालीपन ज़रूर है। मगर देखिएगा वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही लाउबाली, लापरवाह सी जाविया बहुत ही समझदार, सुलझी हुई दिखाई देने लगेगी। सबाहत ने हमेशा की तरह एक उम्मीद, एक यकीन और एक तसल्ली के साथ उनका मान रखा था। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा चलो मैं ज़रा लॉन देखा हूँ, माली से कुछ नए पौधे भी लगवाए हैं और घास और खाद भी देखनी है। सबाहत चाय बन जाए तो तुम लॉन में ही ले आना, हम सब वहीं चाय पियेंगे। जी भाभी जान। शाज़मीन बेटा। जी अम्मी। बेटा तुम्हारी जाविया के साथ कोई लड़ाई तो नहीं हुई? रुमाना साकिब हुसैन के जाने के बाद सबाहत उसके करीब आकर बैठी। नहीं अम्मी, हमारी कभी लड़ाई हुई है जो अब होगी। अम्मी आपको वहम हो रहा है और कोई बात नहीं है। अम्मी आप इन सब छोटी छोटी बातों को सोचकर परेशान नहीं हुआ करें। बेटा मैं परेशान नहीं हूँ, मगर जो बात मैं खुद महसूस कर रही हूँ भाभी जान ने भी महसूस की है और उन्होंने पहले भी मुझसे जिक्र किया था। बेटा जिन हालात में मैं तुम्हें लेकर यहाँ आई थी तब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सामान भी नहीं था। मैंने अपनी इद्दत के दिन भी इस घर की छत के नीचे पूरे किए और अल्लाह ताला की साथ के बाद मेरे भाई भाभी मेरा और तुम्हारा सहारा बने। बेटा देखो आज तक हम दोनों का साहिबान भी बने हुए हैं। मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए कम ही सही मगर थोड़ा बहुत ज़माने को जानती हूँ। भाईजान और भाभी जान जैसे मेहरबान और नेक सिफ्त इंसान बहुत कम ही हैं और बेटा मैं और तुम चाह कर भी हक अदा नहीं कर सकती जितने एहसानात भाईजान और भाभी जान के तुम पर और मुझ पर हैं। जी अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शाज़मीन बहुत तवज्जो से अपनी माँ की बात को सुन रही थी। अच्छा चलो अब उठो, अच्छी सी चाय बनाओ और बाहर लॉन में ले आओ। मैं भी बाहर लॉन में ही जा रही हूँ।
भाभी जान चाय का इंतज़ार कर रही होंगी। जी अम्मी। सबात लॉन से निकली, लॉन की जानिब बढ़ी, तब शाज़मीन भी किचन आ गई। सारा दिन गुजर गया। वकास ने ना घर में नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना साथ लेकर गया, और रात का खाना लगा हुआ था मगर ना मंतर साहब थे और ना ही वकास खाने पर आया था। दफ्तर से घर आया तब से ही अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया था। सालिहा बेगम की सुबह मंतर साहब से भी खूब बहस हो गई थी और तब से वो भी अपने कमरे में बैठे थे। सुबह के बाद सारा दिन गुजर गया और एक लफ्ज़ भी बात नहीं की। सालिहा बेगम दिन भर में जितनी बार भी कमरे में गईं, या तो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ रहे होते, या अपनी किताबों की गर्दानी में मसरूफ़ होते, और या फिर अपनी कुर्सी पर बैठे झूठते दिखाई देते। मस्जिद से नमाज पढ़कर आने के बाद वो भी अपने कमरे में ही थे। इस घर के रहने वाले 3 अफराद, और जिनमें से 2 को बिल्कुल चुप लगी हुई थी। सालिहा बेगम इधर से उधर बोलाए अपने कामों को समेटती रहीं। हाँ, मगर घर के इस खामोश माहौल को महसूस तो कर ही रही थी। सुबह नाश्ते का एक वक्त होता और फिर रात खाने पर, जब घर के ये तीनों अफराद एक साथ बैठते, हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती। ज़्यादातर मंदर साहब और वकास ही बातें करते और सालिहा बेगम खामोशी से उनकी बातों को सुने जाती, और अगर इंतहाई कोई ज़रूरी बात होती तो उसका जिक्र हो जाता, मगर ऐसा कम ही होता। वकास अपने बाप से ही दिन भर की बातें, ऑफिस के काम, मसरूफियात और दुनिया में हो रही इधर उधर की बातों का तस्करा लेकर बैठा होता। उसकी बात को सुने जाते, जवाब देते, मगर आज तो ये सब भी नहीं था। टेबल पर खाना लगा हुआ था। 4 मरतबा जाकर वकास के कमरे को दस्तक भी दे चुकी थी। मंदर साहब को भी जाकर कितनी ही मरतबा खाने पर बुलाने का कह चुकी थी, मगर ना अभी तक मंदर साहब खुद आए थे और ना ही बेटा अपने कमरे से निकला था। सालिहा बेगम इंतज़ार करती रही, और जब सबर जवाब देने लगा तो पैर पटकती अपने कमरे की जानिब चली आई। आपको और आपके बेटे को खाना नहीं खाना था तो कह देते, मैं इतनी ख्वारी ना करती। गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, और मेरा क्या था, अंडे फोड़कर खा लेती। सारा दिन इतनी मेहनत आप दोनों के लिए करती हूँ। सुबह नाश्ते से लेकर रात गए तक बावर्ची खाने में आप और आपके बेटे के लिए खड़ी ख्वार होती रहती हूँ। वो जिस तरह गुस्से में बिखरी हुई आई थी, उसी तरह ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। हम बाप और बेटे के लिए रात का खाना पकाना, सुबह का नाश्ता बनाना तुम्हें ख्वारी में डालता है, तो कल से खुद को इस ख्वारी में न डालना। मंजर साहब सख्त मुस्तरब दिखाई दिए। अच्छा, सालिहा बेगम तंग कर बोली, साफ क्यों नहीं कहते, मेरे पके हुए खानों में अब ऐब दिखाई देने लगे हैं। बाप और बेटे का जी भर गया है और घर का नाश्ता और खाना नहीं खाएंगे तो क्या रोज़ाना बाहर का नाश्ता खाना खाएंगे। वो उसी तरह उनके सर पर खड़ी हुई थी। नेक वक्त परवरदिगार ने हम बाप और बेटे का पेट भरने का जो आसरा रखा होगा वो ही काम आएगा। बंदर साहब उसी तरह कुर्सी पर बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी हिल रही थी और वो अपने हाथों को दोनों जानिब फैलाए, सर को कुर्सी की पुष्ट से टिकाए आहिस्ता आहिस्ता झूल रहे थे। साफ क्यों नहीं कहते, मेरे बाद अब आपको मेरे हाथों के पके हुए खानों में भी नुक्स दिखाई देने लगे हैं, और मेरे खिलाफ जो जहर आपके दिल और दिमाग में भरा हुआ है वो अपने बेटे के दिलो दिमाग में भी भर रहे हैं। आपकी तरह वो भी घर के खाने से, नाश्ते से मुंह मोड़े बैठा है। जब से दफ्तर से आया है अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए है। सालिहा बेगम सब चिड़चिड़ी हुई। 4 मरतबा उसके दरवाजे को बजा कर आई हूँ, ज़ोर ज़ोर से पीट डाला है उसके कमरे का दरवाज़ा, मगर ना दरवाज़ा खुला और ना वो खाने पर आया। और यही हाल आपका भी है। आप दोनों बाप बेटा जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं, ज़हनी अज़ियत देने पर तुले हुए हैं। मगर मैं आपको बता ही देती हूँ, आप और आपका लाडला बेटा जो चाहे कर ले, आप दोनों की ये कोशिश बेकार है। घर का नाश्ता और खाना आप दोनों छोड़ कर बैठे हैं सिर्फ मुझे तकलीफ़ देने की खातिर, मगर आप दोनों की ऐसी किसी कोशिश का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो उसी तरह गुस्से में भिपड़ी हुई थी। बंदर साहब
अपनी आंखों को बंद किए कुर्सी से सर को टिकाए बैठे थे और कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, मगर वो पूरी तरह उनकी जानिब मुतवज्जो थे। सालिहा बेगम की एक एक बात को सुन गए थे, मगर क्या कहते खामोश थे। कुछ कहने का फ़ायदा था और ना उन पर असर ही होना था। और ये सब आजकल की बात तो नहीं थी। एक उम्र का साथ, ज़िंदगी का एक सफ़र सालिहा बेगम के साथ गुजरा था। मिजाज की तेज़ी, तबीयत की सख्ती अपनी जगह, मगर दिल भी तो गुबार से भरा हुआ था। ज़बान में छुरी चाकू के धार के जैसी तेज़ी थी। बात करती तो सामने वाले के दिल को ही चीर कर रख देती। और मंदर साहब तो वैसे ही उनसे बहुत ही कम बात करते। फतुल इमरान कोशिश यही होती सालिहा बेगम से बात करने की नौबत ही ना पड़े। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से ना सामना हो ना बात हो, और अपनी जानिब में वो पूरी कोशिश भी कर लेते। महीने भर के राशन और घर के अदायगी बिलों को वो खुद ही देख लेते। सालिहा बेगम को कहने की ज़रूरत ना पेश आती और मंदर साहब खुद ही ये सारे उमूर निपटा चुके होते। इसके अलावा दूध, दही, गोश्त, सब्ज़ी, तरकारी सब वो खुद ही फिक्र से ख्याल करते और ले आते। घर के और अहले खाना के ज़रूरियात ज़िंदगी वो उनके कहने से पहले ही पूरी करने की कोशिश करते। यूँ बीवी के साथ इन सब उमूर पर बात करने की नौबत ही ना आती। यही नहीं, जब मुलाजमत थी तो अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम की दूसरी नौकरी भी इख्तियार की हुई थी। इस तरह घर से ज़्यादा वक्त बाहर ही सर्फ होता और अब रिटायरमेंट के बाद भी यही था। सुबह नाश्ते के बाद अखबार को लेकर बैठ जाते, सौदा सुरुख ले आते, खाना खाते और ज़ोहर की नमाज के लिए चले जाते और वापस आकर ज़रा देर को सो जाते। असर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाते तो वॉक के लिए निकल जाते। बसा औकात तो असर के निकले इशा के बाद घर आते। सालिहा बेगम भी उनसे ना पूछती और वो खुद भी सुकून से रहते। घर होते तो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे किताबों की बरगर्दानी में लगे रहते। हाँ, मगर अब महसूस होने लगा था उनकी ये सारी यकतरफा कोशिशें, सारी तदबीरें बेकार साबित हुई थीं और सालिहा बेगम के मिजाज में, तबीयत में पहले से भी ज़्यादा तेज़ी और तलखी आ चुकी थी। पहले तो एक उनकी ही ज़ात थी, मगर अब औलाद थी। सालिहा बेगम के अताब का निशाना बन रही थी और कितनी ही मर्तबा तो खुद वक़ार से उनसे बात कर चुका था, मगर वो तो खुद बेबस थे, उसे क्या जवाब देते। आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं? सालिहा बेगम उसी तरह गुस्से में खड़ी हुई थी। आप यहाँ आराम और सुकून से बैठे हैं और वो वहाँ अपने कमरे में बैठा है, दरवाजे को बंद किए हुए। उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया और कितनी मर्तबा आपको आकर खाने के लिए बुलाओ, उसके कमरे का दरवाज़ा बजाओ, खाना सब ठंडा हो रहा है, आप जाकर उसे कुछ कहते क्यों नहीं? वो जब से दफ्तर से आया है अपने कमरे को बंद करके बैठा है और आप यहाँ कमरे में गुम बैठे हैं। सालिहा बेगम टलने को तैयार नहीं थी, मुसलसल बोले जा रही थी, बात को दोहराए जा रही थी। जाहिर सी बात थी जवाब लिए बगैर वो कमरे से नहीं जाएंगी। तब मंदर साहब को अपनी खामोशी तोड़ने का इरादा करना पड़ा। वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहता है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? रहने दो उसे कुछ वक्त आराम और सुकून से। और मैं बदनसीब तो ये भी नहीं कर सकता कि अपना कमरा बंद करके कुछ वक्त गुजार लूँ। वो सब बेजारी से उलझते लहजे में उनकी सारी बातों का जवाब देते बोले, अच्छा, अब आपको अपना कमरा अलग करने की ख्वाहिश इस बुढ़ापे की उम्र में होने लगी है। आज कमरा अलग करने की तमन्ना आपको हुई है तो कल दूसरी औरत को ले आने की ख्वाहिश भी होगी। वो उसी तरह ऊंची आवाज़ में, ओसेली आवाज़ में, चीखते चिंगारते लहजे में आंखों को फाड़े उनकी जानिब देख रही थी। खुदा का वास्ता है सालिहा बेगम, यहाँ से चली जाओ। मंदर साहब ने सख्त बेजारी से अपने दोनों हाथों को जोड़ा। मेरे पास से चली जाओ, इस कमरे से चली जाओ। उसे भूख लगेगी तो खाना खा लेगा और मेरा खाने का जी चाहेगा तो मैं भी आकर खा लूँगा, मगर तुम मेरे सामने से चली जाओ। भाड़ में जाएं आप और आपका बेटा, और मैं क्यों यहाँ अपना दिमाग ख़राब करने खड़ी हूँ। पैर पटकती उसी तरह गुस्से में बड़बड़ाती कमरे से निकली। तब मंदर साहब ने कुर्सी से उठकर कमरे के दरवाजे की कुंडी ही लगा दी। आपको मेरी किस्त कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए, वीडियो को शेयर करके कीजिए।
ہمارا اخلاق اور لباس ہماری شخصیت کا، ہماری ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ جس قدر مہذب ہوگا ہمیں اتنا ہی باعزت بنائے گا۔ اپنے اخلاق اور لباس سے خود کو مہذب اور باوقار بنائیے۔